Now student, we come to the very important topic, green revolution. This question is always asked, right? You know, green revolution was started in the decade 1960, right? Because there was a shortage of irrigation, crops, agriculture method, everything, and India was just struggling with the shortage of food grains, right? It was just struggling for the dependent on agriculture. So the green revolution was started for this successful, to make a successful in agriculture field, right? For the farmers, for the crops, for the productions, for the good economic balance. So the first is extraordinary increase. क्या था इसका reason green revolution का? Extra increase in the agriculture production. Green revolution का मकसद ये था उसका productions बढ़ाना, double करना. क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन? व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? इंप्रूव सीड्स, डेफिनेशन है, इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंटेंस इफेक्ट ऑफ द फार्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी टू द एवरी प्लेसेस इज नीडेड फॉर द irrigations, right? Agriculture में improve facilities in irrigations. This all comes in the together and makes a green revolution, and there is a huge productions in the productions of the agriculture crops, right? इसका definition हुआ. Now दूसरा क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन में? Uses of chemical fertilizers and insecticides, record bread productions in wheat and paddy. Wheat and paddy के कैश क्रॉप्स है, उसमें record bread production हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन की मदद से. Self sufficiency in food is a landmark of historic achievement. एक historic achievement हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन. इतना सारा शॉर्टेज हो गया, जहाँ पे स्कैरसिटी थी, जहाँ पे शॉर्टेज थी, उसमें भरपूर स्टॉक मिलने लगा इंडिया में. There is a sufficient storage in the food grains, right? हद से ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, जिसमें जरूरत थी उनको फूड ग्रेन्स में फायदा होने लगा. We get the benefit for the poor people, for all the Indian citizens. Better technology in agrarian field, right? क्या था reason? Because we get a better technology due to the green revolution in agrarian field, right? The production of cash crop has increased. Cash crop का production double हो गया. Benefits to the farmers, to the Indian country, right? इंडिया कंट्री में भी फायदा हुआ. टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर. इसका मेन ग्रीन रिवोल्यूशन का था टू गेट द प्रोडक्शंस डबल, टू हेल्पफुल टू द पुअर फार्मर्स. जितना लैंड था मैक्सिमम यूज होवे, इजी फैसिलिटीज होवे, टेक्निकली को हेल्पफुल रहे फार्मर्स को, लाइक लो लेबर्स, वेरी लेस लेबर्स, एंड गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन. ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन यही इंटेंशन था. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now student, we come to the next topic of this topic, institutions reforms. Institutional reforms agriculture में क्या होता है? Institutional reforms is connected to the land ownership. जो फार्मर्स लोग का लैंड ऑनरशिप से जो लोग ले लेते थे, डेप्थ में जाता था, उनको प्रॉपर इलीगल कुछ भी करके उनकी जमीन ले ली जाती थी, उसके लिए था, right? The government put some legal step against this to save the farmers' land, right? Subsidies, crop subsidies मिलती थी, and the product of the farm that is produced, इसपे technical reforms मेन काम करते, right? इसके लिए ये थी. अब इसमें क्या क्या चीज पॉइंट आता है? Government has discarded landlordships and stopped the exploitations of farmer. जो अन्याय होता था फार्मर्स के साथ, जो मेहनत करते थे उतना पैसे नहीं मिलते थे, ये सब चीज उनको बेनिफिट में मिले, उनको न्याय मिले, उनको जस्टिस मिले. इस हिसाब से गवर्नमेंट ने इनके लिए स्टेप उठाया है टू सपोर्ट द फार्मर्स. नेक्स्ट पॉइंट, disparity among the land owners has been removed by land selling act. एक एक्ट बनाया था लैंड सेलिंग एक्ट, जिससे जो जिनकी जमीन है उसमें डिस्पैरिटी कुछ आवे नहीं, उनको सपोर्ट मिले, उनकी जमीन उनके पास आवे, कुछ अनजस्टिस उनके साथ ना आवे, कुछ इलीगल प्रोसेस से उनकी जमीन लॉस ना आवे. उस हिसाब से लैंड सेलिंग एक्ट का एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने फॉर द सपोर्ट ऑफ द फार्मर. फाइनेंशियल हेल्प फॉर द क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड थ्रू प्रधानमंत्री जो था, राइट, स्कीम थी एक, तो प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये PMCIS, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम था, जो किसान क्रेडिट कार्ड देते थे, जिसमें क्रॉप सब्सिडी दी जाती थी. बहुत ही बेनिफिट था ये किसान लोग को लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए. ड्यू टू द ड्रॉप और एक्सेसिव, जहाँ पे रेन ज़्यादा गिरती है, जहाँ पे सूखापन है, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल
जो लॉस होता था गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स को उसको सपोर्ट मिलता था, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट हेल्प मिलती थी। प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट मिलता था फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट, राइट। तो उनको लीगल सपोर्ट की जरूरत होती थी, उनको हेल्प देता था और उनको बेनिफिट मिलता था। दे गेट अ गुड बेनिफिट ऑफ द, दिस इज अ प्रोवाइडिंग ऑफ, right, providing legal supports for the sale of farm products. Next is facilities like cooperative societies, market association, cooperative warehouse, cold storage, transformation and communication, etc. are to be paid by the, these facilities are being given by the government. This department undertake the technical reforms to save the agriculture product, to support the agriculture farmers, those are connected with it, right. Following organizations for the purchase of the farm product, right. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्म प्रोडक्ट के लिए हेल्पफुल है, सपोर्ट मिलता था जो भी हेल्प चाहिए, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? पहला है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एग्रीकल्चर बेस पे है, इसको NAFED बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, राइट, ये GROFED इसका फुल फॉर्म है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करते हैं मैनी वेज टू द फार्मर्स इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, गॉट इट। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है ऑफ द गवर्नमेंट साइड। NDDB is a big NDDB support to the technical reforms related to the agriculture. Hope you like this topic. Good morning students. Now we come to the last topic of this chapter. It's very important, role of agriculture in Indian economy. देखो अपन ने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एवरीथिंग, राइट। फार्मिंग क्या होता है, ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडी, ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्या होता है। ना अपने एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह मैच होता है, राइट। अपने कंट्री को किस तरह इकोनॉमी की डेवलप होता है, पैसे आते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड, इस सब चीज में किस तरह से अपने को मदद होता है। तो इंडियन इकोनॉमी का रोल क्या है, यू नो द मेन इंडियन कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर करता है, क्या इनका रोल है, दैट विल स्टडी इन दिस चैप्टर। नाउ प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, राइट। तो एक अपने पास एक इनकम हो गया, पॉवर्टी जो गरीबी है उनको पैसे कमाने का एक सोर्स है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली मेंटेन, राइट। देन एग्रीकल्चर और 17% ऑफ द टोटल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 70% इनका कंट्रीब्यूशन है, राइट, इन द ग्रोथ। मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम पैडी, व्हीट, oil seeds, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर की जो भी पैसे अपने इंडिया में कमा सकते हैं, तो अपना ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट क्या होगा मार्केट में, ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। वी गेट अ फॉरेन करेंसी इन इंडिया बाय एक्सपोर्टिंग दिस थिंग्स। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रीन प्रोडक्ट, अपना रैंक सेकंड है, इतना कुछ प्रोडक्शन से इंडिया कंट्री में, राइट, इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर। कॉटन, टेक्सटाइल, सुगर, पेपर, oil, etc. are food processing to get raw materials, right? ये सब raw materials हम लोग को different types से provide करते हैं, जो industries में जाते हैं, industry में पैकिंग होकर बाहर जाता है, इंडिया में यूज होता है। This is one type of helpful to the economy directly. It is thus benefit to the Indian economy by all this thing, right? It is an important contribution in Indian economy, right? अपने Indian economy में बहुत ही बड़ा contribution से ये सब चीज का agriculture का, right? We have self-reliant in the field of grain productions due to the green revolution के बाद अपना सेल्फ रिलायंट हो गया, अपने पास शॉर्टेज था जो ग्रेन्स का, जो अपने पास कमी थी, जो लोग जो भूखे मरते थे, जो लोग के पास जब भी ग्रेन्स नहीं था, खाने के लिए फूड था, एवरीथिंग आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन वी गेट अ बेनिफिट, राइट। और अपने पास पैसे भी अच्छे हुए, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगा, राइट। एंड इंडियन बिकम अ ग्रोथ इन द process of many things
that we have lost, right? अपने irregular बारिश गिरती थी, adequate बारिश होती थी, तो there are many intervals of problems are arising in India. But जब green revolution आया तो अपने पास buffer में सब stock होने लगा, and we can get a benefit by the field of agriculture in Indian economy. Demand for the food grains is increasing and it has to grow economically. जितना food grains का demand बढ़ेगा उतना अपना क्या होगा economic maintain है, because you know the populations are increases, right? अपने 1951 में बात करें तो अपना बहुत ही कम population था, but at present you know 125 crores, right? अपना उतना पहुंच गया population. उस टाइम पे कुछ 36 करोड़ के आसपास था, something I can say 36 करोड़ 10 lakh. राइट ऐसा कुछ अपने पास पॉपुलेशन 1950, नाउ इट इज मोर देन 125 करोड़, राइट, एंड पॉपुलेशन अपना बढ़ गया है. तो इस सब बढ़ने के बाद क्या होता है कि अपने को फूड्स की जरूरत है, ग्रेन्स की जरूरत है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता. तो गवर्नमेंट हैड गिवन मेनी कंट्रीब्यूशंस इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन टू गेट अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन. कुछ शॉर्टेज हो जाता है, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाता है, राइट, एडिक्वेट बारिश जो होता है, राइट, इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ रेन जो नुकसान करते हैं क्रॉप्स को. इस सब चीज का रिजोल्यूशन लाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट था वो अपने को काम में आया, एंड वी गेट अ एक्स्ट्रा गुड ग्रेन स्टॉक फॉर द इमरजेंसी एंड फॉर द नीड्स ऑफ द पुअर पीपल. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, राइट. एग्रीकल्चर अपने इंडिया में जो भी चीजें हर एक इंसान को हर एक कोने में अपने फूड प्रोवाइड कर सके, वी गेट अ बेनिफिट फॉर द पुअर पीपल एज वेल एज ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, राइट. ग्लोबल पे भी ग्लोबल जो है ग्लोबलाइजेशन, उसमें भी एग्रीकल्चर ने काफी मदद की है, एंड इट आल्सो just find out the new way by the green revolution. BT seeds there, many countries in the world are focusing for the green revolution to get a good stocks of food grains in the future for all the countries. All the countries are dependent to get a benefit of agriculture on the Indian economy and their own countries, right. Import export जो भी करते हैं, whatever things, right, the countries which are getting their own crops, उनकी कंट्री में जो भी क्रॉप्स होते हैं, they exporters in the business and they maintain their economy. In the same way, India also get many benefit by the agriculture product which we get a production, we sell it to the other countries of the world, and we get a foreign exchange, and we can maintain a good economy, Indian economy for our country. So we end our chapter here. You have to write question answers of all these chapters in your classwork notebook. If you have any difficulties, contact me. Thank you. Be safe at home.